को हम पढ़ेंगे आज। टुडे वी विल गो फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। 70 ग्रुप मेंबर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम बात करें हैलोजेंस की, दे ऑल आर colored substances like fluorine and chlorine are gases at room temperature. Bromine is a red color liquid and iodine is a solid. Their melting and boiling point steadily increases with atomic number because surface area increases, van der Waals force of attraction increases, boiling point increases. Melting point depends on the molar masses. Melting point is directly proportional to molar masses. Within on moving top to bottom, molar masses increases and melting point will also increase with increasing atomic number. All halogens are colored. और इसका रीजन क्या है? This is due to absorption of radiations in visible region, which results in the excitation of outer electrons to higher energy level. देखिए क्या होता है, जब हम हैलोजेंस के ऊपर कोई लाइट फॉल करते हैं तो ये जो हैलोजेंस होते हैं ये विजिबल लाइट की जो विजिबल लाइट के जो रेडिएशंस हैं जिनकी रेंज आपने पढ़ी होगी इन क्लास 11 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की होती है, उनके रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, विजिबल रीजन के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। And after absorbing these radiations, the electrons of halogen get excited and goes to higher energy level. Up somewhere their energy will be ended, means the energy will be zero. Then they come down to the original state or ground state. और जब वो वापस आएंगे तो विजिबल रीजन के रेडिएशंस को ही एमिट करेंगे और जिस कलर की लाइट को वो एमिट करेंगे दैट विल बी विजिबल टू अस। यहाँ इसलिए कलर्ड हैलोजेंस होते हैं क्योंकि ये विजिबल रेडिएशंस को ही एब्जॉर्ब करते हैं। जाहिर सी बात है जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा कोई सब्सटेंस उसी रेडिएशंस को तो एमिट करने की पोजीशन में होगा। तो जब विजिबल रीजन के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं तो जब वो वापस आएंगे तो उन्हीं विजिबल रेडिएशंस में से ही कोई वेवलेंथ की लाइट को वो एमिट करेंगे और वही कलर जो हमें विजिबल रहेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई हैलोजेंस आर कलर्ड, तो एक सिंपल सी बात आपको लिखनी है जो हाईलाइटेड है इस समय, दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस in visible region which results in the excitation of outer electrons to higher energy level, right? By absorbing different quanta of radiation they display different colors. आपको मालूम है जो light है it is a discontinuous form of energy. It travels in form of small energy packets called photon or quanta, and the energy of a photon or quanta can be calculated by the formula E equal to Sc by lambda. तो E डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। तो जैसे यहाँ लिखा by absorbing different quanta of radiation they display different color. जब different quanta of radiation absorb करेंगे उनकी different wavelength होगी तो they will display different color. लेकिन ये सब आप अगर लाइन छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लाइन आपको लिखनी है, दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस इन विजिबल रीजन which results in the excitation of outer electrons to higher energy level. तो इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। अगर क्वेश्चन आता है why halogens are colored, आपको ये बताना है simply because halogens absorb radiations in visible region which results in the excitation of outer electrons to higher energy level, and when these electrons come back to the ground state
they emit radiations of visible region। और इसमें कलर आप सभी को बताया गया है, देखिए क्लोरीन येलो कलर की गैस है, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो कलर गैस, ब्रोमीन इज अ रेड कलर लिक्विड एंड आयोडीन इज अ वायलेट कलर सॉलिड। फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली sparingly soluble in water but are soluble in various solvents such as chloroform। तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो वाटर के साथ soluble हो जाते हैं और रिएक्शन भी करते हैं केमिकली, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन आर sparingly soluble, लेस soluble होते हैं एंड but they are soluble in organic solvents such as chloroform etc. CCl4, carbon disulfide, hydrocarbons to give colored solution। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। Cl बॉन्ड Cl is greater than Br बॉन्ड Br, greater than F बॉन्ड F, then I बॉन्ड I। यहाँ पे F बॉन्ड F मिसिंग है, तो ये बताया गया है the smaller enthalpy of dissociation of F2 compared to that of Cl2, whereas X bond dissociation enthalpies from chlorine onward showed the expected trend। A reason for this anomaly is the relatively large electron repulsion among the lone pairs in F2 molecule, where they are much closer to each other in case than in case of Cl2। वही जो रीजन वहां बताया वही बता रहे हैं। 7.15 देखेंगे, ये पूरे 17 ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ होल 17 ग्रुप। Question is, although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine। तो इसके बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी 10-15 मिनट बाद इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा और केमिकल ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। So if we study the chemical properties of halogens, you have observed many times that they carry one negative charge, F negative, Cl negative, Br negative, I negative, like this। So all halogen exhibit -1 oxidation state, but bromine, iodine and chlorine can also show +1, +3, +5, +7 oxidation state, and this can be explained on the basis of their electronic configuration। आप अगर किसी भी हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ग्राउंड स्टेट में, तो इट इज NH2 NP5, this is NH2, this is NP5, and in case of Cl, Bri, D subshells are available but not in the case of chlorine। तो आप देख सकते हैं ये एक जनरली से लिखा है NH2 NP5, Nd में इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखिए जब ये एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, when there is only one electron in the outermost shell which is unpaired, so either this electron will be shared with anyone, if it is shared then it will show +1 oxidation state, or if one electron is gained in this p atomic orbital then it will show -1 oxidation state। During compound formation may possible one of the electron of p, this electron of p get excited to higher energy level। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो जब ये यहाँ चला गया तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3। तो जब 3 अनपेयर्ड हो गए तो यहाँ पर फिर ओवरलैपिंग होगी, शेयरिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इट विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, so 5 electrons will be unpaired, 1 2 3 4 5, so +5 oxidation state will be shown। And if this
S is shifted here, then this condition is right. This is the one electron only. So 7 electron will be unpaired. So they will participate in chemical bond formation and show +7 oxidation state. तो ये इनके AC से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि फ्लोरीन में क्योंकि डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता, so it shows only -1 oxidation state. Keep in mind, fluorine never show oxidation state other than -1 or 0. F2 में 0 रहेगा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इन F इट इज -1. इन दोनों के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन शो नहीं करता. रीजन अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे F is the most electronegative element of the periodic table. मैंने आपको कल भी बताया था, फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का. यही वजह है फ्लोरीन कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि IUPAC के हिसाब से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हमेशा पहले लिखे जाते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखे जाते हैं. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, आप ऐसा नहीं लिख सकते FCl, ये लिखना गलत है, क्योंकि Cl के मुकाबले F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाना चाहिए. F is negative, Cl is positive here. हम ऐसा नहीं लिख सकते, F2O नहीं लिख सकते, गलत है ये. F is the most electronegative element, so we should write like OF2. ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है. तो फ्लोरीन या तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा या -1 शो करेगा, लेकिन ClBrI में डी एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल होने की वजह से ये +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. वो आपने अभी देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ये वाला यहाँ चला गया तो 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे, ये यहाँ चला गया तो 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे, और अगर ये यहाँ चला गया तो 7 अनपेयर्ड हो जाएंगे. तो इसी तरह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं. In interhalogen oxides of oxo acid, ये बल्कि the oxidation state of +4, +6 occur in the oxides and oxo acid chlorine and bromine. अभी आपने देखा +1, +3, +5, +7 था, लेकिन +4 और +6 नहीं आ रहा था. लेकिन आप देखेंगे जो ऑक्सो एसिड्स हैं उसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +6 भी आ जाती है. The fluorine atom has no d orbitals in its valence shell and therefore cannot expand its octet. बिल्कुल वही बात है जैसे नाइट्रोजन में आपने पढ़ी है, जैसा आपने ऑक्सीजन में पढ़ी है कि उनमें डी एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो अपना जो कोवैलेंसी है वो 4 से ज्यादा शो नहीं कर सकते. इसी तरह से फ्लोरीन भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा. The fluorine atom has no d orbital in its valence shell and therefore cannot expand its octet. Being the most electronegative, it exhibits only -1 oxidation state. लेकिन अगर F2 है तो 0 भी होती है. All halogens are highly reactive, क्योंकि अपने पीरियड के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने पीरियड के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपने पीरियड के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड टू गेट नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड टू गेट पॉजिटिव चार्ज. तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने के रेस्पेक्ट में और हैलोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के रेस्पेक्ट में. They react with metals and non-metals to form halides. The reactivity of halogen decreases down the group. अब इस चैप्टर का जो 10 मिनट पहले बात कर रहा था मैं, उसी की बात आ गई है कि F2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. F2 is the strongest oxidizing halogen, और
वो क्यों है उसका रीजन हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है इसकी वजह से ऐसा है। अपने माइक को म्यूट कर ले बेटे, किसी का ऑन है देखो आप। देखिए फ्लोरीन क्यों सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमें इस चार्ट से पता चलेगा, इस स्केच से पता चलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास X2 कोई भी गैसियस एटम है, मॉलिक्यूल है, और ये कन्वर्ट हो रहा है X नेगेटिव एक्वस आयन में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। यहाँ पे कितना है, -1। ये हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। और जब ये खुद रिडक्शन में जाएगा तो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन ये जो कन्वर्जन है X2G से X नेगेटिव एक्वस में, आपने पढ़ा हुआ है ना, आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आपने देखा था H2 H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। ऐसे ही कोई भी हम हाफ सेल बना सकते हैं जिसमें X2 X नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। आपने पढ़ा भी है वहाँ पे Br2 Br नेगेटिव एक्वस में। तो ये जो कन्वर्जन है X2G का X नेगेटिव एक्वस में, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट इन्वॉल्व 3 प्रोसेसेस। पहले प्रोसेस में क्या होगा, जो X2G है ये X2G कन्वर्ट होगा X गैसियस एटम में, और इसको तोड़ने के लिए हमें या एनर्जी चाहिए, वो कहलाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फिर हम कन्वर्ट करेंगे इस X नेगेटिव G को X नेगेटिव G में। उसके लिए इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और यहाँ जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और फिर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो अगर X2 से X नेगेटिव एक्वस बनना है तो ये तभी पॉसिबल है जब इन तीनों एंथैल्पीज का सम, कौन कौन सी, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, ये तो पूरे मॉलिक्यूल के लिए है, तो हमें एक ही एटम के लिए चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पे हम हाफ कर लेते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर इन तीनों का सम नेगेटिव आता है then only the process will be spontaneous, means X2G X नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट होगा, यानी कि रिडक्शन में जाएगा, और तभी ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी नेगेटिव वैल्यू के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये देखिए ये क्या, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यहाँ हीट एनर्जी चाहिए होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी रिलीज होगी, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी, ये भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो नेगेटिव बनाने वाले फैक्टर कितने हैं, 2 फैक्टर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो सम है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो। इन दोनों का सम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा, तभी तो नेगेटिव आएगा प्रोसेस, तभी तो ये X2G X नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन में जाएगा, और तभी ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ एक बात आपको और समझनी है,
फ्लोरीन के बारे में अगर हम बात करें, फ्लोरीन के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि जो फ्लोरीन है उसमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो ये आता था, Cl2 Br2 F2 देन I2, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में तो ये आता था Cl F Br I, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं हमसे, कह रहे हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो Cl से कम नेगेटिव है, इसके बावजूद भी जो फ्लोरीन है वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर देखेंगे, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर F का, फिर Cl का, फिर Br और फिर I। तो ऐसा क्यों है? देखिए कि भले ही इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू फ्लोरीन के लिए कम है, लेकिन F सबसे छोटा आयन है। FClBrI में सबसे छोटा साइज F नेगेटिव का है, और जितना साइज छोटा होता है उतनी ही हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होती है, ये वाला। जो कि नेगेटिव वैल्यू है, तो F नेगेटिव का साइज इन सब में सबसे छोटा है, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रिलीज होगी। और देखिए ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो तो क्लोरीन से काफी कम है। तो यही रीजन है कि जो फ्लोरीन है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी जो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उन सब में सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन है। ऑक्सीजन से भी बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लोरीन है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नो डाउट कम है फ्लोरीन से। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू कम नेगेटिव है फ्लोरीन से, लेकिन ये जो फैक्टर है हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला और लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाला फ्लोरीन को बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है। इन तीनों का सम जब नेगेटिव आएगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, देन ओनली दिस X2 will be converted to X negative aqueous, and when it will be converted into X negative aqueous then only it is undergoing reduction and can act as good oxidizing agent। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन तीनों एंथैल्पीज पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लोरीन सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि उसके केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी की अमाउंट है वो काफी ज्यादा रिलीज होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो कम पॉजिटिव होगा। तो हमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ chlorine is smaller than chlorine, still it is a better oxidizing agent than chlorine। तो केवल एक ही फैक्टर कोई ना है ये वाला, बाकी दो फैक्टर्स भी तो हैं, उनसे जीत जाएगा फ्लोरीन। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी है? कम है, कम पॉजिटिव, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी है? ज्यादा नेगेटिव। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो फ्लोरीन है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है देन द क्लोरीन। तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना साइज छोटा होता है उतनी ज्यादा रिलीज होती है। क्यों होती है? जितना छोटा आयन होता है वो उतनी ही ज्यादा लेयर में अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू। एक लेयर, काफी लेयर्स रहती हैं, तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू जो है काफी बॉन्ड जो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप कर लेते हैं, और हाइड्रेशन एंथैल्पी की अमाउंट जो है वो ज्यादा रिलीज होती है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि क्लोरीन अगर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसके दो रीजन है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, लो है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी वो बहुत ज्यादा है FClBrI के मुकाबले में।
तो देखिए मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ फिर से आपके आपके पास। जो क्वेश्चन मैं आपसे बात कर रहा था, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लिखने वाले ने एनसीईआरटी में 3 बार लिखा, उसे इतना पसंद है ये क्वेश्चन। देखिए क्या करें, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव, although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to fluorine, fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. Why? यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो कम है भाई फ्लोरीन की, कंपैरेटिव टू क्लोरीन, लेकिन फिर भी क्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दो वजह है, लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F सिंगल बॉन्ड F बॉन्ड, ये लेस एंडोथर्मिक हो गया। सेकंड, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए दोबारा क्वेश्चन ये कहाँ दिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार इंटेक्स में दिया, पर एक बार एग्जाम्पल दिया, और एक बार दिया इन्होंने इंटेक्स में। कंसीडरिंग द पैरामीटर्स such as bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy, compare the oxidizing power of F2 and Cl2। तो बस दो ही लाइन लिखनी है। Chlorine is better oxidizing agent than chlorine due to first, low bond dissociation enthalpy of F single bond F, second, high hydration enthalpy of F negative ion। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे तो लगता है कि पूछा जाना चाहिए एग्जाम में काफी बार, और पूछा भी गया है, लेकिन जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है, जितना अच्छा ये मुझे लगता है, उतनी बार नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया आपका ये क्वेश्चन। लेकिन हाँ, इससे इसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है। जब हमें पता चल गया F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन, इसका मतलब ये हुआ F2 जो है Cl2 को, Br2 को, I2 को उनके एक्वस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है ऐसे, F2 + 2HCl एक्वस, तो क्या होगा, ये Cl2 को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सॉल्यूशन वाली फॉर्म में रहेगा 2HF। यहाँ ऑक्सीडेशन से Cl का -1 है, यहाँ कितना है 0, तो ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। फ्लोरीन का क्या हो रहा है, 0 से -1, ये रिडक्शन में जा रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो F2 तो Cl2 Br2 I2 को डिस्प्लेस कर सकता है उनके एक्वस सॉल्यूशन में से, लेकिन Cl Br I F को नहीं, यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप रिएक्शन को ऐसे लिखो Cl2 + 2HF, तो यहाँ आप लिखेंगे नो प्रोडक्ट, क्योंकि Cl जो है वो F को उसके एक्वस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि Cl2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 से कम है। बोर्ड में क्वेश्चन आया है एक बार हमारे पास, ये था आइडेंटिफाई द X2 फाइंड आउट करना था, और यहाँ पे था I नेगेटिव एक्वस, और यहाँ था X नेगेटिव एक्वस, और ये बन गया था I2। तो आपसे X जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे I का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे कितना है 0 है, तो -1 से 0 यानी कि क्या हो गया, ये रिडक्शन हो रहा है। -1 से 0 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, सॉरी। तो कौन यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए। तो आप देखिए फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस I, Cl कैन डिस्प्लेस, Br कैन डिस्प्लेस, तो लगभग सभी FCl Br I को डिस्प्लेस कर पाएंगे। आइए उसी पे बैठिए। तो इस तरह से जो X2 है वो कुछ भी हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, क्योंकि FCl Br I तीनों ही I को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जबकि
जो आई है वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे आपको इक्वेशंस दी हुई देखिए F2 प्लस एक्स नेगेटिव, एक्स में भी Cl Br I F तो सभी को डिस्प्लेस कर पाएगा। Cl2 प्लस 2x, अब ये केवल Br और I को ही कर पाएगा। Br I ये केवल I को ही कर पाएगा Br2, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है, जो फ्लोरीन है वो वाटर ऑक्सीजन से भी बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो इस रिएक्शन से सपोर्ट हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे, फ्लोरीन का 0 है, यहाँ O का -2 है, यहाँ का F का -1 और O2 का 0 है। तो O का -2 से 0, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और कौन कर रहा है? उसी में बैटरी है, आइए। तो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो F का कितना है? 0 से -1, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो जो रिडक्शन में जा रहा है वो कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यानी कि जो ये रिएक्शन ही सपोर्ट कर रही है, फ्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबका ऑक्सीडेशन कर सकता है, उसका ऑक्सीडेशन फ्लोरीन ने कर दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन सपोर्ट कर रही है आपको कि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। तो अगर आपसे रिएक्शन आती है राइट अ केमिकल इक्वेशन विद सपोर्ट दैट F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिएक्शन लिखेंगे। टाइम ओवर हो रहा है, बाकी बातें मैं कल करूंगा। उसी का कल की रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाया था बेटे, ठीक है। तो उसमें क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही थी इशिका? सर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही थी तो आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी। अच्छा, आज मैंने वो टॉपिक डिस्कस किए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, और आपका एक और था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो मैं डिस्कस किए। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर कल बताऊंगा आपको एक बार दोबारा से, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे 9 o'clock, ठीक है।